नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश्वर चौहान। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट्स और उसके बाद हमने बात की थी सबसेट्स ऑफ एनी सेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वेन डायग्राम एंड द ऑपरेशन ऑन सेट्स। मेन टॉपिक हमारा जो आज का होगा वो होगा ऑपरेशन ऑन सेट्स। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, बट बिफोर दिस वी हैव टू रीड अबाउट द टॉपिक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, what is the meaning of Venn diagram? Venn diagram, it means some of the relationship between sets can be represented by the help of diagram, and that is called the Venn diagram. For example, let us suppose U equal to, that is universal set, 1 2 3 4 5 6 and 7 up to 9. A equal to, let us suppose 2 4 7 8. U can be framed as a rectangular box. U को हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और जितने भी बाकी इसके सेट होते हैं, बिकॉज ऑल द सेट्स आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सो U can be framed, U can be represented by the help of rectangular box, and other sets are represented by the help of circles. So let us suppose this is A. A contains 2 4 7 and 8. After this, remaining element of U are 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So this representation is known as Venn diagram. Let us suppose if U equal to same 1 2 3 4 5 6 up to 9, A equal to, let us suppose 2 4 7 8, and B is equal to, suppose 2 4. So A and B are the subset of U, and B is the subset of A also. It means then this is equal to, this is A and this is B. याद रखिए, B is the subset of A, तो B can be framed in a A, and this is A, this is U. So this is 2 and 4. After 2 and 4, the remaining element of A are 7 and 8, and after this one 2 4 7 8, that is 1 3 5 6 7 8 and 9. So this is also known as Venn diagram. In earlier classes we have already learned about the operations on the numbers, just like addition, subtraction, multiplication and division. ये ऑपरेशन हम नंबर पर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए 2 है और 5 है, हम एडिशन लेते हैं तो एडिशन पढ़ा हमने 2 + 5 = 7। सब्ट्रैक्शन लिया तो 2 - 5 या 5 - 2 अगर लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू 3, या 2 - 5 लेंगे तो दैट इज इक्वल टू -3। 2 + 5 और 5 + 2 दोनों ही 7 आएगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दीज आर द ऑपरेशंस ऑन नंबर लाइन। Similarly, if we combine two sets, हम दो सेट्स पर अगर कोई ऑपरेशन करते हैं तो that is called the new set. What is the new set? And we will study about these operation on sets. First one is union, second one is intersection, and third one is difference. यानी हम क्या करेंगे, अब हम तीन ऑपरेशन यहाँ पे मैंने पढ़ेंगे, जो कि होगा यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। फर्स्ट इज यूनियन। यूनियन क्या है? लेट अस सपोज इफ यू आर गिवन टू सेट्स A and B,
मान लीजिए ए और बी दो कोई सेट दे रखे हैं, तो ए और बी दैट इज यूनियन। यूनियन को हम ये सिंबल होता है, इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है, और डिफरेंस आप सभी जानते हो दैट इज माइनस साइन। सो इफ यू आर गिवन ए एंड बी टू सेट्स, देन ए यूनियन बी इज व्हाट? ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स either they in A or in B. It means in union the collection of all the elements which are in A or which are in B or in both. यानी वो या तो A में होंगे या B में होंगे या फिर दोनों में होंगे, तो that will be called the union. It means the definition of union is what? If A and B are two sets, then A union B यानी union of A and B can be the set of the collection of किस का कलेक्शन? Of all the elements which are either in A or in B or in both. But जो दोनों में कॉमन है वो केवल एक ही बार लिया जाएगा, यानी कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस. So A union B is equal to, that is X, such that X belongs to A or X belongs to B. It means, let us suppose if A equal to 1, 3, 5, 6 and B equal to 2, 4, 7, 9, 1, 2, 4, 7, 9, तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है A equal to A union B, sorry. What is the meaning of A union B? Either in A or in B, but common elements are taken only once. It means 1 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आएगा, इसमें 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 5, 6, 7 और 9. तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिया जाएगा. अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 8 कोई से भी सेट में नहीं आ रहा है, सो 8 कैन नॉट बी इन A union B. Is it clear? Properties of union. First one is A union B equal to B union A. This is called the commutative law. Commutative property. अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, आपने पढ़ा था A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, तो यहाँ पे भी हमारा जब A यूनियन B निकालेंगे तो B यूनियन A दोनों सेम आएंगे, तो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की. इसी प्रकार आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है किसकी? मल्टीप्लिकेशन की. सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स, एंड दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सारे. क्लियर? A union phi equal to A. This is the law of phi. It means null set. This is called the idempotent law. Idempotent law. It means किसी भी सेट का अगर उसी सेट के साथ में हम यूनियन निकालेंगे तो फिर से वही सेट आएगा, क्योंकि दोनों में सेम ही एलिमेंट होते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट. अगर यूनिवर्सल सेट का हम किसी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू यू. एंड इफ यू हैव टू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वेन डायग्राम बताया था. लेट अस सपोज इफ यू हैव टू फ्रेम द वेन डायग्राम फॉर A यूनियन B, तो दिस इज A एंड दिस इज B, क्योंकि हो सकता है दोनों में सेम कॉमन एलिमेंट ना आए. तो A यूनियन B का मतलब क्या है कि A और B दोनों के एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड द A union B by Venn diagram.
Is it clear? So this is called the union. Now next topic is intersection of sets. What is the meaning of intersection? Intersection means the common part of both the sets A as well as B. It means the collection of all the elements which are common to both the sets A and B. It means, let us suppose if A intersection B is equal to, that is X is that X belongs to A and X belongs to B, यानी वो किसमें A में भी होगा और B में भी होगा, तो ही वो इंटरसेक्शन में आ सकता है. For example, let us suppose if A equal to 1, 2, 4, 5, 6 and B equal to 1, 3, 5, 6, 7. Then A intersection B is equal to what? Common part. A is common, 5 is also common. So, or 6 is also common. So, it means 1, 5 and 6. So, this is the intersection of two sets. If we have to prove, we have to find out the intersection by the help of Venn diagram, then this is equal to U, this is A and this is B. तो स्टूडेंट कॉमन पार्ट देखिए कौन दोनों में से कौन सा है. कॉमन पार्ट ये भी है, ये A में भी आ रहा है और ये B में भी आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज द कॉमन पार्ट. सो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ A इंटरसेक्शन B. नाउ वी हैव टू फाइंड यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन. फर्स्ट इज सेम एज यूनियन. A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, B यूनियन A पढ़ा था, तो सेम यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. यानी अगर हम A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ा था, मान लीजिए B इक्वल टू सपोज 1, 3, 6 है, तो कॉमन कितना आएगा दोनों में A और B में? दैट इज 1 and 3. और B और A में कितना कॉमन आएगा? सेम वही तो आएगा, तो 1 and 3. और इसका मतलब दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सिमिलरली एसोसिएटिव A इंटरसेक्शन B, यानी हम A और B का इंटरसेक्शन निकालकर उसके बाद C का इंटरसेक्शन निकालें, या पहले B और C का इंटरसेक्शन निकालकर A के साथ इंटरसेक्शन निकालें, तो दैट इज दे आर इक्वल. सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ. दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट. अगर हम 5 का A के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 में तो कुछ भी नहीं होता, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा. सिमिलरली A और U में कॉमन लेंगे क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ U, तो दैट इज इक्वल टू A. तो दिस इज लॉ ऑफ 5 एंड U. दिस इज आल्सो नोन एज A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A. अगर हम किसी भी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दिस इज नोन एज आइडेंटिपोटेंट लॉ. And this property is the most important property. This is known as distributive property. Distributive property. And distributive property का मतलब है कि distributive of intersection on union. Is it clear? यानी हम B और U का C का यूनियन निकालकर A के साथ इंटरसेक्शन निकालें, या A और B का इंटरसेक्शन निकाल दें और A और C का इंटरसेक्शन निकाल दें और दोनों का फिर यूनियन निकालेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे. इसको मैं आपको एक पहले इसी से बताता हूं एग्जांपल से. मान लीजिए A, पहले B यूनियन C निकालते हैं यहां से, तो B यूनियन C कितना आएगा? B और एक सेट और ले लेते हैं. मान लीजिए C इक्वल टू ले लिया सपोज 1, 4, 7. क्लियर? तो पहले हम निकालते हैं B यूनियन C. B और C का यूनियन कितना आएगा? 1, 3, 4, 6 और 7. अब इसका A के साथ इंटरसेक्शन निकालिए. A B यूनियन C इक्वल टू A के साथ इंटरसेक्शन, तो कॉमन कितना आ रहा है सर? 1 और 3 आएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 and 3. अब हम सबसे पहले निकालते हैं A इंटरसेक्शन B. तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितना आया? A
ए और बी में कॉमन क्या है? 1 और 3। फिर ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन निकालते हैं, तो ए और सी में क्या कॉमन है? दैट इज ओनली 1। और अगर हम इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो दैट इज 1 एंड 3। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सॉरी, क्लियर? अगर हम इसी को वेन डायग्राम से शो करें, मान लो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ए बी और सी। सबसे पहले हम निकालते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी कवर हो जाएगा टोटल, दैट इज बी यूनियन सी। क्लियर? अब बी यूनियन सी के साथ में हम ए का इंटरसेक्शन निकालते हैं। ए कितना आएगा? पहले ए बना लेते हैं अलग, तो ये आ गया भाई आपका ए, तो दिस इज ए। क्लियर? ए बी सी। हम इन दोनों का, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ रहा है? देखिए इसमें ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है और इसमें ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, तो केवल कौन सा पार्ट आ रहा है? एक तो ये वाला पार्ट आ रहा है और एक ये वाला पार्ट आ रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब अगर हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे कॉमन लेके दोनों को, तो कितना आएगा? दिस इज ए बी सी एंड दिस इज यू। तो ये दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है भाई वो ये आ रहा है। तो ये हुआ आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम इसको देखते हैं कितना आएगा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दैट इज ए बी सी यू। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी का कॉमन पार्ट, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट ए बी सी यू, ए इंटरसेक्शन सी। और ए इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा? दैट इज दिस वन। क्लियर? Now you have to find out the value of A, B, C. A, B, C, U. अब इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है, यानी दिस इज A इंटरसेक्शन C एंड दिस इज A इंटरसेक्शन B। इन दोनों का यूनियन निकालना है। देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट इसमें से आ गया और ये पार्ट दोनों में है और ये पार्ट यहाँ से आ गया, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट ही आ जाएगा। It means this is A intersection B union A intersection C। अब देखिए जरा, ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम आ रहे हैं। Is it clear? तो it means this property is the distributive difference of sets. It means let us suppose you are given two sets A and B, then A minus B is what? A minus B का मतलब है the collection of all the elements which belongs to A but which does not belongs to B. It means X such that X belongs to A and X does not belongs to B. It means X A में तो होना चाहिए लेकिन B में नहीं होना चाहिए। For example, let us suppose A equal to 1 3 4 6 8 and B equal to 1 4 7 8. It means if A minus B, we have to find A minus B, तो A में से वो एलिमेंट घटाने जो B में भी आ रहे हैं, तो कितना 1 आ रहा है, छोड़ दीजिए। 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो 3 आएगा। 4 यस, 6 नहीं आ रहा है तो 6 आएगा। अब 8 आ रहा है तो इसका मतलब दिस इज द वैल्यू A minus B। Now let us suppose B minus A अगर निकालना है हमें, तो B minus A का मतलब क्या है? That is subtract all the elements of A from B। तो B में से A के एलिमेंट घटाने, तो 1 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, क्या बचता है सिर्फ 7 आ गया। इज इट क्लियर? तो इसी प्रकार अगर हम इसको वेन डायग्राम से दिखाना चाहें
तो दैट इज यू ए बी, दिस इज ए एंड बी, हमें निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए ये सारा हो गया, इसमें से बी का पोर्शन कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा भाई आपका a माइनस बी, क्लियर, दिस इज a माइनस बी। सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b माइनस a, अगर हमें b माइनस a निकालना है तो अब की बार b में से a का पार्ट घटा दीजिए, तो b में से a का पार्ट ये घट जाएगा ये वाला, तो क्या बचेगा सर, ये वाला पोर्शन बचेगा, दैट इज b minus a. Is it clear? So this is the difference of the two. For example, if a equal to 3, 5, 7, 9, 11, b equal to 7, 9, 11, 13, and c equal to 11, 13, and 15, then find a union b, a intersection b, a intersection c, a minus b, a intersection b intersection c, a intersection b union c, and a intersection b union a intersection c. So first of all we have to find out the first part, a union b. a union b means a और b के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, तो देखिए 3 आ गया, 5, 7 दोनों में आ रहा है, 9 और 11 दोनों में आ रहा है, तो 3, 5, 7, 9, 11 और इसमें क्या बच गया सिर्फ 13, तो दिस इज इक्वल टू A यूनियन B। सेकेंड पार्ट A इंटरसेक्शन B, A और B में दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, दैट इज 7, 9 एंड 11, क्लियर। थर्ड पार्ट A इंटरसेक्शन C, A और C में कितना कॉमन आ रहा है, देखिए 11 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दैट इज 11। फोर्थ पार्ट a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब है a में से b के पार्ट हटा दीजिए, तो b वाला कितना घटेगा a में से, 7, 9 और 11 हट गया, क्या बचेगा सिर्फ 3 और 5। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तीनों में कॉमन देखना है। आप इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, तीनों में या तो एक साथ देख लीजिए या फिर कोई से दो का एक साथ इंटरसेक्शन निकाल के उसका तीसरे के साथ निकाल लीजिए। तो a और b में कॉमन कितना है, पहले हम a इंटरसेक्शन b निकाल लेते हैं, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब कितना आ रहा है, 7, 9 एंड 11, और इसका c के साथ में इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब इसका c के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो कितना आ रहा है सर कॉमन, दैट इज 11। इज इट क्लियर? तो कोई सा भी कर सकते हो आप, a इंटरसेक्शन b की जगह पहले b इंटरसेक्शन c निकाल सकते थे, तो b और c में कॉमन कितना आ रहा है, 11 और 13, और फिर 11, 13 का इसके साथ में इंटरसेक्शन निकालोगे तो 11 आ जाएगा कॉमन, क्लियर। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट है भी आपका क्या, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो पहले हमें ये सॉल्व करना होगा b यूनियन c, तो b और c में के एलिमेंट्स को क्लब करना है आपको, 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब a के साथ में इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो a के एलिमेंट में देखिए यहाँ से 7 तक आ गया, 3 और 5 और क्लब हो जाएगा, सॉरी इंटरसेक्शन निकालना है इसमें, और इसमें कॉमन कितना आ रहा है, 7, 9 और 11, क्लियर। 6 पार्ट 7, ये 7, ठीक है। 7th में पहले हमें निकालना a इंटरसेक्शन b, तो a और b का इंटरसेक्शन आप निकाल चुके थे ऑलरेडी, 7, 9, 11। फिर a इंटरसेक्शन c निकालिए, a और c में कॉमन कितना आ रहा है, सिर्फ 11, क्लियर। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, तो यूनियन लेना है तो कितना आ गया, 7, 9 और 11, क्लियर। अब जरा देखिए ध्यान से कि ये तो सॉल्व हो गया सारा, ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो अभी तो मैंने इंटरसेक्शन में प्रॉपर्टी बताई थी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन। ये था हमारा टॉपिक ऑपरेशन ऑन सेट्स और वेन डायग्राम। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और मोर देन टू सेट्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं कि कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।